So hello students, this is one shot for accountancy and here you see all the theoretical part as well as your numerical parts also we are covering in this video only. And this is one shot that actually we are containing all the chapters in this video. We are taking all the chapters, we are considering all the chapters of accountancy in this video only. So let us start from fundamental, that is chapter number 2 for accounting for partnership firm. And in this you have to learn the section which section states that partnership definition. So that's section number 4, and according to Indian Partnership Act 1932 this definition is given, and this is the definition you have to learn. It is very important for you. And now we are going for learning about the partnership definition. So partnership is a relation between persons who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all. The person who have entered into a partnership with one another are individually called partners. Persons जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं, एंड पार्टनर्स कलेक्टिवली आर नोन एज पार्टनरशिप फर्म, और जो कलेक्टिवली मतलब सारे पार्टनर्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं. इस पार्टनरशिप के डेफिनेशन में जो बात लिखी है ना, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब है कोई पार्टनर स्लीपिंग है या फिर वो नॉमिनल पार्टनर है, तो इट शुड बी कि उसके ऊपर एक्ट सारे लगेंगे, मतलब उसकी लाइबिलिटीज़ कैसी होंगी, अनलिमिटेड होंगी, चाहे वो काम कर रहा हो चाहे वो काम नहीं कर रहा हो. ओके, सो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एज usual we are going with the features of partnership. We have some features related to 2 or more persons from definition only: agreement, mutual agency, business with motive of earning profit, sharing profits, unlimited liability, registration is not compulsory, and management and control. Right? So ये नोट भी आपको याद करना है, क्योंकि इस नोट से मैंने इसलिए स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ कि ये नोट जो है इसको अच्छे से कर लीजिएगा. मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर इन पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी 2, एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा. कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सेक्शन 464 कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स शैल नॉट एक्सीड्स द लिमिट एज स्पेसिफाइड इन रूल्स विच एट प्रेजेंट इज 50. Partnership deed क्या है? It is a written or oral agreement regarding terms and conditions of partnership. This is called partnership deed, and the content of partnership deed is given to you. There is no need to go with importance, and the most important topic is provisions for partnership deed. Means if the partnership deed is absent, then what is the provisions? Then how you are going to solve the question? Because the question is coming in your exam about the absence of partnership definitely in the form of P&L appropriation account. So here you have sharing of profits and losses. You have to share equally. If no partnership deed is there, means if the partnership deed is silent. Interest and capital not allowed. Salary and commission not allowed to any partner. Interest on advances or loan by a partner is 6% per annum. If it is given or not, but partnership is silent, then it should be 6% per annum. Okay, interest and drawing not charged. I hope it is clear to you all. Okay, now next is maintenance of capital account. As usual, capital account को जो maintenance है, we have 2 types. One is for the fixed account and another is for the fluctuating account. But in fixed account we have to make 2 accounts. Fixed account में हम कितने बनाते हैं? 2 अकाउंट बनाते हैं. फ्लक्चुएटिंग में 1 अकाउंट बनाते हैं. तो फिक्स में हमारे पास 2 अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है. तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आता है और विड्रॉन आता है, और करंट अकाउंट में वो सब कुछ आता है जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन में डाला है. राइट? तो एक क्रॉस में डालते हैं. इसके बाद अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक अकाउंट बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड करंट टुगेदर. सो वी आर मेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट इन फ्लक्चुएटिंग अकाउंट इन द नेम with the name partners capital account. Okay, then we have interest in capital. As usual, we have to provide interest on capital also, but we have 3 situations, right? So the first is when partnership agreement is silent about interest on capital, तो कोई interest on capital नहीं देना होगा. सेकेंड सिचुएशन अगर हम बात करें, केस 2 में बात करें, तो उसके अंदर फिर से 3 सिचुएशंस हैं. अगर लॉस हुआ है तो आपको कोई IOC नहीं देना है. अगर सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ है तो आप IOC दोगे, और अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है और IOC देना है तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. ओके, और थर्ड इसका सिचुएशन है कि पार्टनरशिप सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो फुली अलाउड होगा इवन यू हैव अ लॉस. इसको ध्यान से याद करना, क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है. क्वेश्चन में ये आ जाता है, कॉन्ट्रडिक्टरी है कि अगर सपोज करो आपको लिखा है IOC देना है और लॉस हुआ है,
तो जनरली बच्चा करता है आईओसी नहीं देगा क्योंकि लॉस हुआ है, लेकिन अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आपको उसका आईओसी देना पड़ेगा। ओके, नाउ वी हैव अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। ओके, अगर हम बात करें हमारे ड्राइंग की, तो ड्राइंग पे एक क्वेश्चन मेरे को लगता है कि ज़रूर आना चाहिए, चाहे वो 1 मार्क में ही क्यों ना आए। इट इज़ दैट कि इंटरेस्ट इन ड्राइंग, तो हमने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर बनना चाहिए, चाहे वो 1 मार्क में ही क्यों ना बनता हो। इट शुड बी कि हमारे पास मंथली ड्राइंग है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है और 6 मंथ्स है, मतलब दैट वी कॉल इट एज एंड 9 मंथ्स ऑल्सो, है ना। सो अगर बिगनिंग में क्या केस लगेगा, मिडिल में क्या लगेगा और एंड में क्या लगेगा, ये आपको टेबल से शो हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें अगर कुछ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं उसके बारे में बताते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास 2 मेथड है, एक सिंपल मेथड, एक प्रोडक्ट मेथड, राइट। सिंपल मेथड में जितना भी अमाउंट है ड्राइंग का वो सबको ऐड कर उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड बाय 100 इंटू जितने मंथ रिमेनिंग बचते हैं उससे डिवाइड बाय 12 कर देंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट मेथड तो आपको पूरी टेबल बना के, जो नॉर्मल सॉल्व करते हैं ना, टेबल बनाकर उसमें टोटल प्रोडक्ट करो पहले उसका मंथ का ड्राइंग से, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू 1/12 करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ ऑल्सो वी से दैट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसको आपको देना ज़रूरी है। इट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज कि आपको इसको देखना होगा। और कमीशन की अगर हम बात करें तो कमीशन 2 टाइप के होते हैं, एक बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो बेटा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो जनरली कन्फ्यूजन रहता है, बिफोर चार्जिंग अगर आपको हाईलाइट होगा उसके अंदर, तो बिफोर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 लगाते हैं, लेकिन अगर आपका आफ्टर चार्जिंग है तो आप क्या करने वाले हो, रेट अपॉन 100 प्लस रेट को यूज़ करते हैं, राइट। तो इसमें देखो दोनों तरफ में लिखे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बट इट इज़ आफ्टर कमीशन, है ना। सो नेक्स्ट वी हैव रेंट paid to the partner. It is also charged against profit, so you have to show in P&L account, right. For it we go for the P&L appropriation account, and P&L appropriation account also we are making this account only for distributing profit to the partners, right. So first of all it starts by net profit, and you have to put the net profit to the credit side, and if also you have interest in drawing also, that is also put in credit side by interest in drawing name, right. Now we have to go with but debit side to interest on capital A and B, to partner salary, to partners commission, to reserves, and to profit transfer to A's, B's and C's capital account, whatever the partner's name you have, right. This is also the very important topic that it is definitely coming to your exam. Now the very important topic is past adjustments also, so you have to focus on past adjustment also. This is the format in which you have to show your past adjustment calculations. ऑलरेडी रिकॉर्डेड मीन्स जो रॉन्ग हुआ है, और शुड बी रिकॉर्डेड जो होना चाहिए था। तो रॉन्ग और राइट के नाम से आप इसको कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो आपने एक्स और वाई के नाम से डाल देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ये ऑपोजिट होता है, इसलिए इसको माइनस कर देंगे। कमीशन सैलरी कुछ है तो उसको ऐड कर देंगे, और प्रॉफिट रिमेनिंग बचा है उसको शेयर करना है तो वो उसको भी ऐड कर देंगे। सबको ऐड माइनस करने के बाद जो टोटल आएगा उसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है दोबारा से। तो ए और ए माइनस बी कर आप क्या कर सकते हो, ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। और उसके बाद आपको ये जनरल एंट्री पास करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ कॉल्ड गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करोगे। ओके, फिर है गारंटी ऑफ अ पार्टनर। तो गारंटी ऑफ अ पार्टनर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू फोकस समथिंग, राइट। एंड व्हाट इज यू हैव टू फोकस दैट कि इसमें ऑलरेडी गिवन होगा, कंडीशंस गिवन होगी कि जो प्रॉफिट है पार्टनर को जो आप दे रहे हो वो एक ही बंदा उसको सेक्रीफाइस करेगा, या सारे पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, या उनमें से कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना है, और जो उसमें से आप उसके शेयर में से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड योर गारंटी ऑफ अ profit to a partner. I hope it is clear to you all. Okay, now let's move towards next chapter that is called profit sharing ratio and goodwill. Okay, so let's start from goodwill, and it is also you have to know about goodwill. Goodwill is a name, good name or reputation of a business which helps to earn more profit than others, है ना। देखो जनरली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग फॉर परचेजिंग अ मोबाइल फ़ोन, राइट। सो सपोज द शॉपकीपर ऑफर्स अ फ़ोन टू मी, सो एंड द कंपनी आई डोंट नो, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी कंपनी जिसको मैं नहीं जानता, एट द सेम टाइम दे प्रोवाइड मी शो मी अ फ़ोन ऑफ सैमसंग। तो एक्चुअली आई जस्ट
बिकम अ ब्लाइंड फॉलोअर फॉर दैट कि मैं, हाँ मेरे को पता है उसका रेपुटेशन अच्छा है, उसका गुडविल अच्छा है, तो उसका फ़ोन भी अच्छा ही होगा, और हम उसको ब्लाइंड फॉलोअर की तरह उसको परचेज़ कर लेते हैं क्योंकि उसका ब्रांड नेम है, राइट। दैट इज़ कॉल्ड गुडविल। ये क्या है? गुडविल है, इसलिए ये प्रॉफिट अर्न करने में बहुत हेल्प करता है। ओके, सो नेचर ऑफ गुडविल की अगर बात करें तो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, लेकिन ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है बिकॉज इट हैज़ अ रियलाइजेबल वैल्यू एंड फिक्टिशियस एसेट डोंट हैव रियलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि इसको तो हम बेच सकते हैं ना, राइट, इसलिए इसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है गुडविल की, लेकिन फिक्टिशियस की नहीं होती, इसलिए गुडविल फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल की बात करें तो नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, आपके लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और स्पेशल एडवांटेजेस पर डिपेंड करता है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें नीड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, नीड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में दो टाइप की होती हैं, एक परचेज गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। तो गुडविल, इट इज़ द गुडविल दैट इज़ एक्वायर्ड बाय अ बिजनेस आफ्टर पेइंग कंसिडरेशन कैश और काइंड। परचेज करते हैं गुडविल कुछ देने के बाद, कुछ पैसा दिया, कुछ काइंड में आपने ले लिया, जैसे किसी को बुलाया आपने, किसी बिजनेस को मर्ज कर लिया अपने पास, राइट। एक होता है सेल्फ जनरेटेड बिजनेस गुडविल, जो खुद की कमाई हुई गुडविल है, दादा परदादा के टाइम से बिजनेस चल रहा है तो हमारी खुद की गुडविल डेवलप हो गई, ये कहलाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। लेकिन नोट मैंने लिखा है ना, नोट पर क्वेश्चन बनेगा, एमसीक्यूज बन सकते हैं। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। परचेज गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, एंड सेल्फ जनरेट गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, लेकिन सेल्फ जनरेट गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ओके, अगर हम मैथड्स की बात करें तो वी हैव सिंपल एवरेज मैथड, सिंपल एवरेज मैथड है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इन दोनों के फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद वी हैव सुपर प्रॉफिट मेथड, ओके, तो दैट यू ऑल्सो हैव टू लर्न। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे पास फिर से दो टाइप के हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दैट यू ऑल्सो हैव टू गो विद। फिर लेट स्टार्ट विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर हम बात करें तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म क्या है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट। सो हेयर वी हैव टू dissolve one partnership and form a new partnership, right? Firm is not closed in this. So we have some modes. For that we have changing profit sharing ratio. When one or more partners acquire an interest in the business from another existing partner, it is said to be a change in the profit sharing ratio in a partnership firm. A change in the profit sharing ratio among the existing partner means it is reconstitution of the firm without admission, retirement or death ऑफ अ पार्टनर, राइट। इसमें एडजस्टमेंट्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, आपको न्यू रेशियो निकालने के लिए आ सकता है, एज वेल एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू है, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड, राइट। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ध्यान से, इसको अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए पूरा। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। लेट्स मूव, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न विद द नेक्स्ट चैप्टर, इट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, राइट। So here we have meaning, admission of partner is one of the mode of reconstitution of the firm, जिसमें एक पार्टनर एंटर होता है बिजनेस में, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म में एक नया पार्टनर जब बाहर से एंटर होता है उसे हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, आप इसको 2-3 इफेक्ट्स कम से कम याद कर लीजिएगा इसके, और एडजस्टमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं इसको भी कर लीजिए, क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है, किस चीज़ को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, सेटलमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेस को करना पड़ता है, कैपिटल को एडजस्ट करना होता है, ये सारे के सारे काम इसमें होते हैं। और न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को भी आपको फाइंड आउट करना होता है, और गुडविल का ट्रीटमेंट भी एडमिशन में होगा। इसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर कर दोगे तो आपको न्यू रेशियो निकल आएगा, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको सबको पता ही है जो हमने प्रॉफिट शेयर रेशियो में करा था। फिर इसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के ट्रीटमेंट सबसे पहला है व्हेन, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, आएंगे। दैट इज कॉल्ड व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय अ न्यू पार्टनर। In case a new partner pays premium to the old partners privately, directly or outside the business, it will not be recorded because it is an out of business transaction. However, entry for capital bought in by partners will be recorded. तो क्या एंट्री रिकॉर्ड होगी, आपको सिर्फ एंट्री पे फोकस करना है। Any goodwill already appearing in the books will also be written off in old ratio, that is
जो व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, अगर प्राइवेटली दिया जा रहा है तो गुडविल क्या एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, बट इफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन बिजनेस बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस, फॉर इसके लिए एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. सिमिलरली अगर वो शेयर कर रहा है प्रीमियम को तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करेंगे प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. ओके, अगर कोई पार्टनर गुडविल को लेकर आ रहा है काइंड में तो क्या करोगे, एसेट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और जब वो किस क्या कर रहा है, फॉर गिविंग क्रेडिट ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स शेयर्स ऑफ गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो आप एंट्री पास करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ओके, ऐसे ही हमारी कंडीशंस हैं, कंडीशंस को सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा. ये टोटल 6 कंडीशंस हैं, इन पे क्वेश्चन ज़रूर बनता है. राइट, क्लियर है? बहुत अच्छे से इस पर फोकस कर लीजिएगा. वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, लिख लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है. उसके बाद राइटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, जैसे आप बैलेंस शीट जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी दे रखी होती है ऊपर, तो उसको क्या करना होगा, आपको राइटिंग ऑफ करना होगा, राइटिंग ऑफ करना होगा. तो राइटिंग ऑफ के लिए आप क्या एंट्री पास करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. शुड बी डिपेंड ऑन सिचुएशन, कैपिटल यूज़ करना है या करंट. हिडन गुडविल की अगर हम बात करें तो इस पर भी एक क्वेश्चन बिल्कुल बनना चाहिए इस बार. हिडन गुडविल के ऊपर इसको अच्छे से कर लीजिएगा. ये आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, इसमें कैसे लिखते हैं. नेटवर्थ जो दे रखा है, मतलब गुडविल उसका मल्टीप्लाई किससे कर दो, रेसिप्रोकल शेयर से कर दोगे तो पूरे फर्म की गुडविल निकल आएगी. फर्म की गुडविल जो निकल आएगी उसमें जो एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स हैं उसकी गुडविल को माइनस कर दीजिए, तो फाइनली आपकी हिडन गुडविल आपके पास आ जाएगी. फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, तो लाइबिलिटी और एसेट्स का रिवैल्यूट करोगे. तो उसके लिए जो एंट्रीज़ हैं वो ये हैं, वो उसके बारे में चलते हैं. उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की. फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर आपको रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करना है तो क्या एंट्री पास करोगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. राइट, ओल्ड रेशियो में होगा. और फॉर ट्रांसफर ऑफ लॉसेज, अगर लॉसेज हैं तो इसकी ऑपोजिट एंट्री पास होगी, जैसे ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. राइट, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये सारे स्टेप्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो. रिमाइंडिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, अगर आपको नए पार्टनर कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तो कंबाइंड कैपिटल जो है वो उसका जो मल्टीप्लायर किससे कर दोगे, रेसिप्रोकल से उसके शेयर के, तो पूरे फर्म की गुडविल निकल आएगी. जब पूरे फर्म की कैपिटल निकल आएगी तो क्या कर सकते हो, आप उस बंदी की गुडविल कैपिटल निकाल सकते हो जो पार्टनर नया आया है. ओके, आफ्टर दैट ये सारे क्वेश्चन हमने करे हैं, आप उसकी वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा पुरानी वाली, और समझ में आ जाएगा. इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर कर लेना. फिर है डिटरमाइनिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. टोटल कैपिटल के बेस पर न्यू पार्टनर कैपिटल अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सेम टोटल कैपिटल जो है उसका मल्टीप्लाई सीधे कर दो सिंपल नए पार्टनर के रेशियो से, है ना, न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, तो आपको ईजिली कैलकुलेशन हो जाएगा उस गुडविल का. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. Okay, now we are going to learn with the retirement or death chapter. It is also very important. So, the definition of retirement. Retirement of a partner means retiring from the firm, right? Means if a partner willingly wants retirement from the firm, so partnership firm provides retirement to that partner. In that case, the following conditions are required, right? Like for example, again the reconstitution of firm, right? And again the new ratio will be calculated. So here basically we are going to calculate gaining ratio, right? And in admission we are going for sacrificing ratio. Why this is so? It is only because when a partner is coming, so the remaining partners have sacrificed their profit to that partner also. But in the same case, if a partner is going, so his share is gained by the other partner. That's why in retirement or death we are calculating gaining ratio, and in the same case if we are going for admission we are finding sacrificing ratio. Okay, so here we have a new ratio. The formula for new ratio is old share plus acquired gaining share, and the gaining share ratio is new share minus old share. Well, we are watching the entry gaining partners capital account debit to retiring partners capital account. फिर गुडविल अगर ऑलरेडी अपेयरिंग है बुक में तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, ऑल पार्टनर्स को कैपिटल कर दो, मतलब डेबिट कर देंगे टू गुडविल अकाउंट. राइट, ये कौन सी गुडविल है, एग्जिस्टिंग अपेयरिंग गुडविल है. ठीक है, गुडविल को अगर हमें क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है, तो हमारी जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं
इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जनरल एंट्रीज पर ज़्यादा फोकस कर लीजिए, सबको वीडियो को पॉज कर जनरल एंट्रीज को लिख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये सबसे ज़्यादा एनरिच वीडियो होगी आपके लिए। इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, राइट। सो हेयर वी आर गोइंग फॉर हिडन गुडविल एट ऑलरेडी लर्न इन दिस प्रीवियस चैप्टर। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, द रिवैल्यूएशन अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर इन द सेम मैनर इन देयर you are preparing an admission and profit sharing ratio account. And adjustment of reserves and accumulated profits, it is also the same, but we are going for, if we are passing single entry, then we have to go with gaining ratio, right. And that amount payable to the partners, ये theoretical part में आ सकता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, पॉज करके देखें। We are going for the settlement of amount due to retiring partners. We are having the following entries, like for example the amount due transfer to retiring partner एज अ लोन अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करते हो तो आप क्या एंट्री पास करोगे, रिटायरिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, राइट। अब जब हम उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। इंस्टॉलमेंट्स में जब हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं विद इंटरेस्ट, हम क्या पास करेंगे एंट्री, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। इफ़ पेमेंट इज़ पार्टली मेड इन कैश एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज ट्रीटेड एज लोन, कभी कभी ये कंडीशन भी आएगी आपके पास कि आधा पेमेंट तो हमने कर दिया या कुछ पेमेंट कर दिया, बाकी लोन अकाउंट में डाल दिया, तब क्या एंट्री पास करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर कैश जो हमने अमाउंट पे किया और रिमेनिंग जो अमाउंट बचा वो किस में डाल दोगे, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, राइट। फिर एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, जो टोटल कैपिटल जो गिवन होगी आपको, उसके केस में आप ये फॉलोइंग कंडीशंस को फॉलो करेंगे। Here in the chapter death of a partner, we are going to learn the definition, and it says the partnership comes to an end immediately whenever a partner dies, although the firm may continue with the remaining partners. फर्म चलती रहेगी लेकिन सिर्फ पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी और फिर दोबारा से पार्टनरशिप जो है वो फॉर्म होगी। इसमें जो मेथड्स हैं, दैट इज़ व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हम लोग फॉलो करेंगे डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट का, वो कैसे कैलकुलेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ डेज और मंथ जो भी आपको दे रखा होगा वो इनटू, अगर आपको नंबर ऑफ डेज दे रखा है तो 365 से डिवाइड करोगे और मंथ से रखे हैं तो 12 से डिवाइड करोगे, राइट। इनटू प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट जो भी आपको दे रखा होगा वो, या फिर जो पास जो प्रॉफिट है वो आपको गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो उसका फाइनल प्रॉफिट निकल आएगा उस पर्टिकुलर टाइम तक का, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, वो जब तक जिंदा रहा था तब तक का, जब तक उन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी तब तक, राइट। ऑन द बेस ऑफ सेल्स भी आप निकाल सकते हो, तो सेल्स जो दे रखा है वो जो आपको बैलेंस में गिवन होगा, डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स, जो प्रीवियस ईयर सेल है उससे डिवाइड कर देंगे, जो एवरेज सेल दे रखी है उससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट एट अ गिवन number of past years, right. After that we are going for accounting treatment, P&L suspense account we have to form, and सबसे पहले जो हम लोग एंट्री पास करेंगे वो करेंगे इन केस ऑफ प्रॉफिट अगर हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट डिसीज पार्टनर, लेकिन अगर लॉस हुआ है तो ऑपोजिट एंट्री पास होगी, डिसीज पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, राइट। थ्रू कैपिटल ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ प्रॉफिट अगर हुआ है तो गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर, और लॉस हुआ है तो डिसीज पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ ज़्यादा इसके अंदर है नहीं। लेट्स गो मूव टुवर्ड्स द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे चलते हैं। ये जो मेथड है थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन नहीं रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा, जहाँ पर सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, पेड ऑफ करी जाएंगी सारी लाइबिलिटीज़ को और सारी एसेट्स को सोल्ड ऑफ किया जाएगा, राइट। सो हेयर we have a meaning of resolution. Resolution means breaking up or extension, discontinuance of existing relationship among the partners. Finally partnership firm को बंद कर देना, यहाँ पे partnership firm ही dissolve हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, right. रिजोल्यूशन ऑफ फर्म मैंने आपको बताया था, रिजोल्यूशन पार्टनरशिप बताया था, राइट। अब है कि मोड्स ऑफ रिजोल्यूशन, कौन कौन से मोड्स हैं, जैसे म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू कर लो, या एक नोटिस कोर्ट के थ्रू होगा, या बाई कोर्ट होगा, कंपल्सरी रिजोल्यूशन ही होना ही था क्योंकि हमने करा ही इतनी टाइम के लिए था, या हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से हमें रिजोल्यूशन करना पड़ा। सेटलमेंट अकाउंट इन केस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फर्म, द ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज एंड एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स वी आर फॉलोइंग। तो इतना सब कुछ यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर जो बेसिक पर्पस है वो क्या है कि हम क्या क्या बनाते हैं इसके अंदर। तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता है और कैश या बैंक अकाउंट बनाया जाता है, राइट। इसमें सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट की बात करें तो इसका देखो, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स की। जैसे मान लीजिए आपको समझ नहीं आ रहा, आपका आंसर नहीं आ रहा, आपका बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा, आपका कुछ भी आपका लग ही
नहीं रहा कि कुछ फाइंड आउट हो रहा है, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कौन चीज़ कहाँ पे आएगी। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट है, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन का आंसर आए या नहीं आए, आपको वो सब चीज़ें डाल देनी है जो चीज़ रिक्वायर्ड थी। जैसे आपको लाइबिलिटीज़ में डाल देनी है, एसेट्स में डाल देनी है, मतलब जो चीज़ जहाँ पर थी वो चीज़ को वहाँ पे डालते चलो। इससे क्या होगा, इससे होगा बेटा ये फ़ायदा होगा आपका कि आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी, इसलिए अकाउंट्स में पास होना थोड़ा सा ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़, राइट, क्योंकि यहाँ पे स्टेप मार्किंग होना शुरू हो जाती है। तो ये आप सब देख सकते हो, द ईजीएस्ट मैथड एंड द फॉर्मेट आई एम शोइंग टू यू, जस्ट लर्न इट टेकिंग अ स्क्रीनशॉट, pause the video and write it down in your notebooks that so that you can do it। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी ना आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप इसके अकाउंट फॉर्मेट बनाइए, जो जो चीज़ आपको लगती है बेसिक चीज़ जो आनी ही आनी है। जैसे रियलाइजेशन में सबसे सिंपल पार्ट क्या है, सारी एसेट्स को आपको रिकॉर्ड करना है, लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करना है, तो ये तो करना ही है ना, तो उसको सबसे पहले कर लो, उससे स्टेप मार्किंग मिलेगी। जो पे ऑफ हो रहा है वो कर दो, जो बिक रहा है वो कर दो, आंसर आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं पड़ती, ठीक है। सो इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम है जो आपका कहाँ पे बनता था, आपका जो पहले चैप्टर से बनाते थे, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, प्रॉफिट शेयर रेशियो में, फंडामेंटल्स में। बस नई बात क्या है, यहाँ पर जितना भी कैश और जो पार्टनर्स ने टेक ओवर किया है वो सब कुछ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जो भी बंदों ने लिया है, ठीक है। और रियलाइजेशन के नाम से तो रियलाइजेशन के नाम से डाल दोगे, मतलब जिस भी बंदे ने टेक ओवर किया है या रियलाइज़ किया है उसका नाम से इसके अंदर आएगा, ठीक है। फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता है, उसकी जो एंट्री है वो होती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, राइट। फिर कैश अकाउंट का जो बैलेंस फॉर्मेट है, बैंक अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो आपके सामने है। और मेमोरेंडम बैलेंस शीट पर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली आ सकता है, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। Let's move toward the second book that is called Accounting for Share Capital, right? जैसे कंपनी अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो कंपनी क्या है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपीचुअल एग्जिस्टेंस एंड अ कॉमन सील, दैट इज कॉल्ड अ कंपनी, राइट। कंपनीज एक्ट कौन सा है, 2013 है, कौन सा है, 2013। सो फीचर्स क्या हैं कंपनी के, तो डेफिनेशन के से आप फीचर्स बना सकते हो, ठीक है, तो वो कर लीजिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। 1% कंपनी, इसके जो आपको थ्योरेटिकल पार्ट याद होना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। फिर हमारे पास शेयर्स आता है, शेयर्स क्या होते हैं, तो हम बोलते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल, कैपिटल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, शेयर्स है। मतलब जब हम कैपिटल को डिवाइड करते हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं वो क्या है, शेयर्स हैं, ठीक है। तो शेयर जो है उसका जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपये से भी हो सकता है, वो 2 का भी होता है, 5 का, 10 का, एनी अमाउंट का हो सकता है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट कंपल्सन कोई लिमिटेड कोई पर्टिकुलर अमाउंट ही होगा जिससे उसको स्टार्ट करेगा, राइट। तो नेचर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो सेक्शन 44 ऑफ कंपनी 2013 कहता है, शेयर और डिबेंचर और other interest of any member in a company shall be movable property, transferable in मतलब negotiable है, इस शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रीली, आप फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हो, किसी और को दे सकते हो, बेच सकते हो, खरीद सकते हो, ये सब कुछ पार्ट इसके अंदर रहता है। तो शेयर्स के प्रकार जो है, काइंड्स ऑफ शेयर्स के बात करें तो प्रीफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स दो होते हैं। प्रीफरेंस शेयर्स जहाँ पर आपका जो डिविडेंड है वो फिक्स होता है, बट इक्विटी में आपका डिविडेंड फिक्स नहीं होता। दोनों में डिफरेंस है कि प्रीफरेंस में आपको वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन इक्विटी में वोटिंग राइट होता है, राइट। जिसको मैंने आपको याद कराया था, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, कि भाई प्रीफरेंस शेयर्स कौन है, घर के दामाद हैं, और इक्विटी क्या है, हमारे घर का बेटा है। उसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई उसको जरूर देख लेना, तब समझ में आ जाएगा। शेयर कैपिटल क्या है, द पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी विच इज रिप्रेजेंटेड अ टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स विच हैज़ इशूड, जो भी आपने इशू किया है शेयर्स, उसका टोटल जो सम है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल के कुछ टाइप हैं, जैसे ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, राइट। ऑथराइज कैपिटल क्या है, सेबी ने हमें कितना ऑथराइज किया, हम कितने रुपए तक के शेयर इशू कर सकते हैं, वो ऑथराइज कैपिटल है। कितना इशू किया वो इशूड कैपिटल है, और कितना लोगों ने सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, ठीक है। फिर रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व्स, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इस पे चले जाइए। नोट्स टू अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं जो बोलूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है हमारी जनरल एंट्रीज़, राइट। तो जनरल एंट्रीज़ को अच्छे से कर लीजिएगा। जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट में इशू नहीं होते, वो एट पार और प्रीमियम पे होते हैं। तो दो ही हमारे पास कंडीशन है, शेयर इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। सर उसके बाद अगर लमसम में अगर आप शेयर इशू कर रहे हो, मतलब सारा का सारा अमाउंट एक ही बार में मंगा लोगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर प्रीमियम में किया है तो फिर प्रीमियम सिक्योरिटी, प्रीमियम रिजर्व टू और हो जाएगा, मतलब क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास हर केस की दो एंट्रीज़ हैं, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2 एंड सेकंड कॉल की 2।
तो इसके हिसाब से आपको ये भी करना है। और फुली सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है, जितने भी शेयर हमने इशू किए थे वो सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए। इट इज़ कॉल्ड फुल्ली सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हमने शेयर किए थे 10,000 लेकिन एप्लीकेशन आ गई 12,000 की, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ता है, प्रो राटा अलॉटमेंट करना पड़ता है, राइट, या फिर रिजेक्शन करना होता है। तो इट शुड बी कि ये क्या कहलाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। अंडर सब्सक्रिप्शन भी होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन में हमने क्या कहते हैं कि हमने खरीदे 10,000 इशू लेकिन लोगों ने नहीं खरीदे और लोगों ने सिर्फ 9,000 के लिए एप्लीकेशन भेजी, तो दैट इज़ कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन है। अंडर सब्सक्रिप्शन एक कंडीशन भी है कि अगर जिस कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर आपके शेयर्स क्या हो गया, आप इशू नहीं कर सकते, राइट। उसके लिए हमें अंडरराइटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब है जब कभी हम लोग लोगों से पैसे मंगाते हैं और लोग उस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट को नहीं दे पाते, तो उसमें वो क्या हो जाता है, कॉल्स इन एरियर हो जाता है। टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है इसके बारे में, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस, मतलब हमने मंगाया था फर्स्ट कॉल, उन्होंने सेकंड कॉल भी फर्स्ट कॉल पे भेज दी, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला जो क्वेश्चन है, ये जो सबसे पहले हमने इसमें क्या करते हैं, कोई एसेट खरीदी और एसेट के बदले में हमने पैसे नहीं दिए, शेयर्स दे दिए, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे एसेट्स टू वेंडर, सन्ड्री एसेट्स टू गुडविल अकाउंट डेबिट। ये गुडविल क्या होता है, जो डिफरेंस अमाउंट है, अगर आपका बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो गुडविल के नाम से आप उसको मैच करते हो डेबिट साइड में। अगर आपका क्रेडिट साइड में नहीं मैच करता तो आप कैपिटल रिजर्व के नाम से करते हो, ठीक है। उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स एट पार एट प्रीमियम होता है। उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स अंडरराइटर्स कमीशन में जो मैंने आपको बताया, मेकिंग अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस अगर करने हैं तो अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस टू अंडरराइटर्स का अकाउंट, अंडरराइटिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L टू अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंटली करने हैं। फोर फीचर पर एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा फोर फीचर एंड रीइशू वाला, और एक नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ही होगा, आपको इसमें बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, बहुत नॉर्मल होगा, ऐसे ही होगा जो आपको आता होगा, राइट। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है, बहुत अच्छा पेपर आएगा जो आपको आता ही होगा, नॉर्मल, ठीक है। फिर आता है रीइशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर्स को अगर रीइशू करना है तो बैंक टू शेयर कैपिटल, अगर पार है तो फिर डिस्काउंट है तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर टू शेयर कैपिटल, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो हम कहाँ से निकाल लेंगे, फोरफीचर से निकाल लेंगे। और अगर प्रीमियम पे करा है तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू SPR, राइट। फिर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन द फोरफिटेड शेयर अकाउंट में शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फिर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स हैं, स्वीट इक्विटी शेयर्स हैं और एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान है। इनको अच्छे से कर लीजिए। ESOP जो ESOP जिसे हम बोलते हैं, इन पे थ्योरेटिकल पार्ट पे क्वेश्चन बन सकता है। इसको क्लिक कर लो, फोटो ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स डिबेंचर्स। ओके, तो डिबेंचर्स क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है एक्नॉलेजिंग अ डेप्ट जो इशू अंडर अ कॉमन सील ऑफ अ कंपनी होता है। हम जो मतलब उधारी है, एक लॉन्ग टर्म उधारी जिसे हम बोलते हैं। फिर बॉन्ड्स भी सेम इंस्ट्रूमेंट है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एंड डिबेंचर्स के टाइप हैं सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रजिस्टर्ड, बियरर, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, राइट। इसके सिर्फ टाइप्स कर लीजिए। एंड इशू ऑफ डिबेंचर जो इशू होते हैं वो तीनों में होते हैं, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, लेकिन शेयर सिर्फ पार और प्रीमियम पे होते हैं। एंड इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, अगर आप इशू कर रहे हो और लमसम में कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एंड अगर पार पे है तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू X% डिबेंचर्स, मतलब जो भी परसेंट दे रखा है। और अगर प्रीमियम पे है तो फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर जो भी परसेंट दे रखा होगा टू SPR। एंड अगर डिस्काउंट पे है तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ऑन इशूड डिस्काउंट ऑन इशूड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट, राइट। और अगर कुछ रिफंड करना है तो क्या करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक के नाम से क्या हो जाएगा, वो रिफंड हो जाएगा। उसके बाद व्हेन डिबेंचर्स अमाउंटेड रिसीव इन इंस्टॉलमेंट्स, अगर इंस्टॉलमेंट में है तो सेम कुछ मैथड वही फॉलो करोगे जो आपने अपने शेयर्स में फॉलो किया था इंस्टॉलमेंट्स वाला, राइट। इसको एक बार और देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है डिबेंचर्स में कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब डिबेंचर जो हम इशू कर रहे हैं वो भी हम किस में करेंगे, कंसिडरेशन में करेंगे। मतलब डिबेंचर्स इशू आपने कुछ से उधार लिया लेकिन उसके बदले में आपने उसको डिबेंचर्स दे दिए, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंसिडरेशन अदर देन कैश में हमने डिबेंचर्स लोन लिया लेकिन डिबेंचर इशू कर दिए, पैसे नहीं दिए, है ना। जैसे इसको हम बोलते हैं लोन लिया, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमने कोई एसेट खरीदी लेकिन पैसा नहीं दिया तो उसके बदले में हमने क्या दे दिया, डिबेंचर्स दे दिए, राइट। तो इट शुड बी कॉल्ड एज कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए। और अंडरराइटिंग कमीशन में आपको पता ही, अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस वाला पार्ट जो है, कोलेटरल सिक्योरिटी पर भी एक क्वेश्चन बिल्कुल लगता है, आना चाहिए। और इसमें कुछ मैथड्स हैं, उसको फॉलो कर लीजिएगा। मतलब इफ़ यू आर फॉलोइंग योर एनी बुक, डी गोयल और TS ग्रेवाल और एनी अदर बुक, सो इट्स ऑलरेडी गिवन इन योर
इलास्ट्रेशंस। इस ये टाइम जो इलास्ट्रेशन सॉल्व करने का ही है, तो इस समय पर आप इलास्ट्रेशंस को सॉल्व कीजिए अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप आराम से अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक डाल दूँगा, आप वीडियोज़ को देख लो, राइट। तो इस चीज़ से सारी चीज़ें आपकी क्लियर वहाँ पे हो जाएंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रही है तो हमको उसका शॉर्ट भी बनाना है। और आफ्टर दैट वी आर गोइंग फॉर डिस्काउंट, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट भी कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, राइट। अब बारी आती है हमारे थ्योरेटिकल चैप्टर की, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है, चैप्टर 1 एंड 2। इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर आराम से इसकी डेफिनेशंस को लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, अदरवाइज एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको। इनको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो करना ही करना है। उसके बाद आप देखो, सबसे बेस्ट और सबसे ईजीएस्ट वे है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, जो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको देख सकते हो फिगर करंट अकाउंट का दे रखा है और प्रीवियस ईयर का दे रखा है, राइट। तो ये आपको रिपोर्टिंग पीरियड्स के बना देने हैं, ये उसका फॉर्मेट था जो आपको याद करना है। फिर कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो ये कंपनी की बैलेंस शीट हो गई, जिसके एसेट और लाइबिलिटीज़ को मैच कराना है परसेंटेज वाइज, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना सही था। और आपको ये भी ध्यान करना है इस चैप्टर में कि आपके जो किस हेड में कौन चीज़ें आएंगी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में कौन से हेड में कौन सी जाएगी, P&L अकाउंट में कौन से हेड में कौन सी जाएगी। इसको याद करना बहुत जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा ऐसा, ठीक है। और संग में इसके संग वो भी बनता है जिसमें आप अकाउंटिंग रेशियोज में मैं आपको बताऊँगा उस इंपॉर्टेंट पार्ट को। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इसको बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट तो देखो इन्हीं चैप्टर्स में से आना बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको करना पड़ेगा। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स तो आपको पता ही है कि जो कट चुके हैं, फिर सीधे अकाउंटिंग रेशियोज़ पे आ जाते हैं, जो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपने मेरी वीडियो देख लेना, इसमें बहुत, मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा इसका भी, पूरा अकाउंटिंग रेशियो अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, सारे एग्जांपल दूंगा। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला याद करना है अगर आपको, करंट रेशियो का फॉर्मूला कैसे याद करोगे, तो करंट एसेट अपॉन लायबिलिटी है ना, तो मैंने उसमें वीडियो में याद कराए हैं बच्चों को सारे शॉर्ट करके, जैसे चिंटू आया चाय लाया, तो याद हो गया, करंट रेशियो का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ऐसे अगर मैं एक और आपको दूँ, जैसे लिक्विड एसेट का रेशियो, लिक्विड एसेट का वो है फॉर्मूला, तो इसमें क्या है कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ जो फॉर्मूला आपको बनता है, उसमें क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी है ना। तो जनरली अगर हम बात करें तो लिक्विड एसेट की अगर हम बात करें तो हमने फॉर्मूला लगाया है क्विक एसेट, है ना। तो इसको आपको बेसिकली फॉलो करना है, जिसमें आप बोलोगे करंट लिक्विड रेशियो में लाला आया चाय लाया, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, चिंटू गया तो फिर कौन आया, दूसरा लाला आया तो लाला आया चाय लाया। ऐसे करके मैंने सारे फॉर्मूले याद कराए हैं, इनको अच्छे से याद कर लो बेटा। फॉर्मूले अगर आप लिख दोगे, वैल्यूज़ पुट कर दोगे, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सोल्वेंसी रेशियो पर भी क्वेश्चन बिल्कुल बनना चाहिए इस बार। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। टोटल से डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सारे कर लो स्टार्टिंग के। मैं तो कह रहा हूँ स्टार्टिंग के दो पूरे फॉर्मेट अच्छे से कर लो, ये सारे के सारे 2 हेडिंग्स जो हैं स्टार्टिंग की। और ये इन्वेंट टर्नओवर रेशियो भी आप इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। एक्चुअली फॉर्मूले तो सारे इंपॉर्टेंट है भाई, फॉर्मूले सारे याद कर लो, कैसे भी करके फॉर्मूले याद कर लो। मैंने अब वीडियो बनाई है, उसको अच्छे से देख लो। थ्योरेटिकल पार्ट भी उसके अंदर मैंने लिया है, वो सारा थ्योरेटिकल पार्ट उसके अंदर कर लो। मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया वो थ्योरेटिकल पार्ट, जो मेन पार्ट मैंने उस वीडियो में डाला है। डिस्क्रिप्शन पे जाके जरूर देख लेना, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के फॉर्मूले यहाँ पे गिवन हो गए आपको, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है, नो डाउट वो आना है। तो इसका फॉर्मेट अच्छे से कर लो। हमें जो 2 मार्क्स है हमारे पास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वी हैव टू गो विद इनडायरेक्ट मेथड, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को जो है फॉर्मेट के साथ। अगर आपको कुछ ना आए तो मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर्मेट बनाओ, जो चीज़ें आपको पता है ये चीज़ यहाँ पे डालनी है, चीज़ यहाँ पे डालनी है। उससे अकाउंट आपको लेजर अकाउंट पहले से बनाना आता ही है, तो लेजर अकाउंट बना देना, मतलब छोड़िए कुछ मत आना, सब कुछ करके आना, ठीक है। स्टेप मार्किंग होगी तो ईजिली आपको मार्क्स आराम से आप ऑब्टेन कर पाओगे, ठीक है। और वैसे तो इसमें सबसे अच्छी बात है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट आता है, और उसके बाद आपको पता पड़ जाता है आंसर सही है या नहीं। इसमें जो मेरे को चांस लग रहा है वो ये लग रहा है कि या तो फुल फ्लैज अगर क्वेश्चन आया, जैसे तो 8 नंबर लाइक क्वेश्चन है, अगर फुल फ्लैज आए तो बहुत ईजी होगा, अदरवाइज वो आपसे पूछेगा कोई 1 या 2 बनाने के लिए, ठीक है। या तो ऑपरेटिंग निकलवाएगा या फिर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग निकलवाएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। या फिर ये वाला पार्ट है ना, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये 2 नंबर में आपको आ सकता है, इसको अच्छे से कर लीजिए। कैसे निकालते हैं इसका आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ हमारी 1 शॉट खत्म होती है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, हेड्स ऑफ, थैंक यू।